Welcome dear parents, teachers and my lovely students. I am Ms. Neha Tale and I am very delighted and privileged to welcome you all to this webinar organized by Prabhat Kids School. We are in a very unique situation where all our beliefs and thoughts are questioned and practically there is no answer to all our questions. But still we are exploring the answers as per our understanding and helping each other. We will surely overcome all this because we all are together as Team Prabhat. Dear parents, we at Prabhat Kids School are committed for an all-round and balanced education based on intelligence as well as physical, moral and social transformation. We strongly believe that education is the movement from darkness to light. Have you ever wondered that why do we serve food to our children in our school? Have you also wondered that why do we have exercises and sport as a part of our academics? Have you noted that food and exercises built up our body, not only body but a healthy body? Yes, we are moving towards a topic and it is very closely related to food and exercises and eventually to our immunity. On this beautiful day, we are guided by Dr. Narendra Rathi on effects of immunity on academic performance. But before moving ahead, I would like to give a formal introduction of our guest of honor. You are Dr. Narendra Rathi. He is a pediatrician in our city, Akola. He focuses on physical, mental and social health problems that could affect the growth and development of our children. He has won International Award in 2011 and National Award in 2013. He has an experience of +7 years at various institutes across Maharashtra. Most of the parents must be knowing our guest of honor, Dr. Narendra Rathi, as earlier his hospital was Rathi Children's Hospital at Civil Lines. It is now known as Smile Children Hospital and is located at Tilak Park, Ramdaspet, Akola. This is the only hospital in Akola with NABH accreditation. NABH accreditation is an international standard. Dr. Narendra Rathi has recently conducted various successful seminars on lockdown and post-lockdown educational challenges and solution and school education in the post-COVID world. Let me take an honor and welcome our guest. Over to you, sir. नमस्ते, मैं डॉक्टर नरेंद्र राठी, बाल रोग तज्ञ, स्माइल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रामदासपेट, अकोला। आज हम बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस कैसे सुधरे, इस विषय में भी हम बात करेंगे। दोनों विषय को आज हम क्लब कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी जो टिप्स हैं वो दोनों विषयों के लिए समान हैं। तो ऐसा समझिए कि इन टिप्स से आपको दुगना फ़ायदा होगा। एक तरफ तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ने में फ़ायदा होगा और दूसरी तरफ बच्चे की पढ़ाई से जितनी पढ़ाई करेगा वो उससे भी ज़्यादा आउटपुट उसको स्कूल के परफॉर्मेंस में मिलेगा। इम्यूनिटी का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, जिसको हम रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं। पेरेंट्स का हमेशा ये कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा बहुत बार बार बीमार पड़ता है, इसकी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत कम है। तो रोग प्रतिकार शक्ति सच में कम है कि नहीं, ये हम लोग जांच करके, बच्चे को तपास के और बच्चे की कुछ टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। हर बार जैसा आप सोचते हैं कि बच्चा साल में 3-4 बार बीमार पड़ गया तो उसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग चेक करके आपको ये बता सकते हैं कि बच्चे की रोग प्रतिकार शक्ति सही में कम है या नहीं। दूसरा जो विषय है आज का, जो हम सभी पेरेंट्स का एक हमेशा कंसर्न रहा है कि बच्चा पढ़ाई तो करता है मगर जितनी पढ़ाई किया उतने मार्क्स नहीं मिले। तो हम सभी को पता है कि मार्क्स मिलाने के लिए पढ़ाई तो अच्छी करनी ही पड़ेगी, मगर पढ़ाई के साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर घर में करते हैं, पेरेंट्स उस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मार्क्स ज़्यादा मिलने में, स्कूल के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन्हीं दो विषयों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा देखने में आता है कि जो भी पेरेंट्स अभी हमारे पास बच्चे को कंसल्ट करने के लिए आते हैं, किसी भी टॉपिक के लिए आए, बुखार, खांसी, सर्दी या जो भी और प्रॉब्लम है,
एक बात हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ टॉनिक लिख दीजिए जिससे कि मेरे बच्चे की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाए या मेरा बच्चा पढ़ाई में थोड़ा होशियार हो जाए। तो आपको बता दूं कि ऐसी कोई टॉनिक आती ही नहीं है। अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि लोग विटामिन सी की गोली खा रहे हैं, कुछ लोग विटामिन डी ले रहे हैं, कुछ जिंक की टैबलेट्स ले रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है? तो साइंस के मुताबिक बिल्कुल ही नहीं बढ़ती है। रोग प्रतिकार शक्ति का ऐसा है कि अगर आपके शरीर में किसी घटक की कमी है, डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, किसी भी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, वो अगर है और वो डेफिशिएंसी हम लोग टेस्ट द्वारा या बच्चे को जांच के मालूम कर लें और उसके बाद जो डेफिशिएंट विटामिन या मिनरल है उसका अगर हम सप्लीमेंट या टैबलेट सिरप देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से हुई थी। न कि हम जनरल में सभी लोग जो नॉर्मल है और ये गोलियां खाएं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं घर में जिससे हमारी बच्चे की इम्यूनिटी और स्कूल का परफॉर्मेंस दोनों भी बढ़े। तो सबसे पहले विषय की ओर हम आएंगे और वो है नींद। नींद जो बच्चों को बहुत प्यारी होती है। तो नींद के बारे में दो चीज़ें जानना हमको बहुत ज़रूरी है। एक, कि कितने घंटे सोना चाहिए। अब ये अलग अलग एज के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका बच्चा मान लो प्री स्कूलर है, यानी प्री प्राइमरी जिसको हम कहेंगे, अपर केजी लोअर केजी, उस समय में 24 घंटे में से 11 घंटे नींद रिकमेंडेड है बच्चे के लिए। पहली से 7वीं तक का अगर बच्चा है तो 10 घंटे और 7वीं के बाद के बच्चों को 9 घंटे। तो 24 घंटे में से इतने घंटे बच्चे ने सोना ही चाहिए। अगर इन घंटों से वो कम सोता है तो ब्रेन को उतना रेस्ट नहीं मिल पाता, और ब्रेन को जब रेस्ट मिलता है नींद में तो ब्रेन हमारा कैसे काम करता है? सीपीयू की तरह से काम करता है। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा नॉलेज जो हमने जागते हुए गैदर किया है उसको सही तरीके से प्रोसेस करके उसको मेमोरी में डालना, ऐसे मेमोरी में डालना कि जहाँ पूछा जाए एग्ज़ाम में या वाइवा में, और उस तरह सही समय उसका मेमोरी से रिट्रीवल होना चाहिए। तो ये पूरा जो प्रोसेसिंग का काम है एक सीपीयू के जैसा ये ब्रेन करता है, और इसके लिए एक सही प्रमाण में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं मगर नींद का समय उनको उतना मिल नहीं पाता, और ये एक मुख्य रीज़न है कि क्यों बच्चे परफॉर्म स्कूल में और परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते। नींद के बारे में घंटों के अलावा एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आपने ये सब सुना होगा, सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका मतलब ये है कि आपका सोने का समय और उठने का समय ये नियर अबाउट कांस्टेंट होना चाहिए। नियर अबाउट का मतलब आधा एक घंटा हम आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हम लॉकडाउन में क्या देखते हैं कि रात को 11 बजे मूवी चालू कर दिया, 2 बजे ख़त्म हुई। आपको पता है 9 घंटे सोना है, तो 2 बजे सो जाएंगे और 9 घंटे यानी सुबह 11 बजे उठेंगे। तो ये हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स नहीं हुई। स्लीपिंग हेल्दी हैबिट्स के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक सही मेंटेन करने के लिए, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी इम्यूनिटी के लिए और मेमोरी के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये देखें कि भले ही सैटरडे संडे हो, छुट्टी का दिन हो या पढ़ाई वाला दिन हो, रोज़ आपका सोने का समय आपका भी और बच्चों का भी आधा एक घंटे से ज़्यादा प्लस माइनस मत कीजिए। और जितने घंटे मैंने बताया उतने घंटे कोशिश कीजिए कि आपको नींद मिल जाए। आजकल स्कूल, ट्यूशन्स, होमवर्क, फिर अलग अलग क्लासेस और उसके बाद मोबाइल, इन सब के वजह से बच्चों का आखिरी अफेक्ट क्या होता है? तो नींद ही अफेक्ट हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ नींद के बारे में। दूसरा विषय आज हम देखेंगे कि डाइट, हमारा खान पान। खान पान पर भी हमारी इम्यूनिटी और स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तरीके से डिपेंड होता है। जैसे खाने के बारे में आपने सभी सुना है कि एक संतुलित आहार होना चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट शब्द तो हम सब ने सुन रखा है, मगर इसका मतलब भी क्या है ये हम समझेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब है कि डाइट में 4 प्रकार के अन्न के घटक होने ही चाहिए। वो 4 घटक क्या है? पहला है सीरियल्स, जिसका मतलब है धान्य या अनाज जिसको हम कहते हैं। तो ये अक्सर तो हमारे खाने में होता ही है, जैसे रोटी है, चावल है, ये होता ही है। मगर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये
कुछ प्रमाण में अंकुरित भी होना चाहिए, जर्मिनेटेड फूड जिसे कहते हैं। कि जर्मिनेटेड चीज़ें जो होती है उसमें एक अलग टाइप के विटामिन और मिनरल्स बढ़ते हैं, और ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत, और ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा घटक हुआ प्रोटीन्स। भारत में बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च बच्चों पे हुआ है, उनके खान पान पर हुआ है। ये देखने में आया है कि अधिकतर बच्चों के खाने में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रोटीन्स हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के लिए प्रोटीन्स का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, बड़ों से भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे का शरीर ग्रो हो रहा है। हमारा शरीर तो कांस्टेंट है, हमारा वेट कोई दिन ब दिन हर साल नहीं बढ़ने वाला है, मगर बच्चों की मसल्स बढ़ने वाली है, बोन्स बढ़ने वाले हैं, कि हाइट बढ़ने वाली है। तो इस समय में प्रोटीन्स का समावेश खाने में अच्छी तरह से होना ही चाहिए। तो प्रोटीन युक्त जो चीज़ें हैं वो हर समय के खाने में आनी चाहिए। प्रोटीन में जैसे हुआ दाल, जैसे लेग्यूम्स, पल्सेस, नट्स, फली दाने हैं, फुटाने हैं, और अलग अलग टाइप की दालें हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडा है, चिकन है, मीट है, ये प्रोटीन हुए, और इसमें से कुछ न कुछ हर खाने में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह के खाने में दाल थी नहीं और शाम के खाने में दाल 2 कटोरी ले ली, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बैलेंस डाइट का मतलब ये हुआ कि हर खाने में जो मैं 4 आइटम्स आपको बताऊंगा उसमें का हर एक का समावेश हर बार के खाने में होना, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। आपको ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मालूम पड़ेगी कि कुछ सीरियल्स कुछ प्रोटीन के साथ खाने से ही हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे आप सिर्फ फलका खा ले एक समय और शाम को दाल खा ले तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फलका और दाल अगर आप साथ में खाएंगे तो आपको उन मिनरल्स की और उस विटामिन्स की शरीर को मात्रा अच्छी मिलेगी। तो पहला हुआ सीरियल्स, दूसरा हुआ प्रोटीन, तीसरा है डेयरी। डेयरी यानी दूध। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, छाछ, पनीर, चीज़, इसमें से कोई ना कोई चीज़ बच्चे के खाने में लेना बहुत ज़रूरी है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आज के हमारे डिस्कशन के लिए है फ्रूट्स और वेजिटेबल, सब्जियां और फल। सब्जियां और फल बहुत ज़्यादा प्रमाण में बच्चों ने खाना चाहिए, और बच्चे अक्सर इसको बहुत ही कम खाते हैं। पेरेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके बच्चे के खाने में सब्जियां और फ्रूट्स कैसे ज़्यादा तरीके से जा सकते हैं, डायरेक्ट सब्जियां या फ्रूट्स नहीं भी खाएँ तो उसके अलग अलग तरीके हैं जिससे हम उनके खाने में इसको इंक्लूड कर सकते हैं और बच्चे खाएंगे। पराठे बना के खिला सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब सब्जियां और फ्रूट्स में कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जियां ही खाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। सब्जियां और फ्रूट्स के बारे में आप एक रूल एक ध्यान में रख लीजिए, और वो है ईट द रेनबो। यानी रेनबो में जैसे कलर्स होते हैं अलग अलग, उस प्रकार से अलग अलग कलर्स की सब्जियां और अलग अलग कलर के फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। हर फ्रूट में हर विटामिन और मिनरल रहेगा ऐसा नहीं है, मगर जब आप अलग अलग कलर की सब्जियां खाओगे और अलग अलग कलर के फ्रूट्स खाओगे तो आपको सभी प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स में होते हैं, ये आपको मिलेंगे, और बच्चे का आहार एक संतुलित आहार कहलाएगा। और इस संतुलित आहार से आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में और ब्रेन का फंक्शन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो ये हुआ बैलेंस डाइट के बारे में। 3 चीज़ें हैं जो कम खानी चाहिए बच्चों ने भी और हमने भी कम खानी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक है शुगर, यानी मीठी चीज़ें। मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए। शुरू से आप बच्चों को आदत लगाइए कि बच्चा मीठा कम खाए। दूसरा है नमक। नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। जितना नमक खाने में रहता है उतना ठीक है, मगर ऊपर से नमक लेने की आदत कुछ घरों में पड़ जाती है, जो कि हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और तीसरी चीज़ क्या है जो अवॉइड करनी चाहिए? वो है 2 प्रकार के फैट्स। सभी फैट्स अवॉइड करना नहीं है, ये आप जान लीजिए। लोग फैट्स को इन जनरली ख़राब समझते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 टाइप के फैट्स है जिनका सेवन कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, मगर कम होना चाहिए। और वो 2 फैट्स कौन से हैं? सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स है जो रूम टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि घी, बटर। मगर अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है? जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि ऑयल। तो जहाँ भी आप हो सके वहाँ पर सैचुरेटेड फैट्स के जगह अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें। ट्रांस फैट्स हमको अवॉइड करना है। जैसे आपने तेल लिया, उसमें कोई चीज़ डीप फ्राई किया, फिर हम क्या करते हैं? इस तेल को रख देते हैं।
तो अगली बार इसी तेल में हम नेक्स्ट कोई चीज़ फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। जब हम डीप फ्राई करके जो तेल बचता है उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ तैयार हो जाते हैं, और ये हमारे खाने में जब हम इसी तेल को यूज़ करके नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो वो उस चीज़ में चले जाते हैं, और ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानकारक है। अगली एक चीज़ खाने के बारे में मैं बताऊंगा, जो खाने के बारे में नहीं, पीने के बारे में है, और वो है पानी। पानी, जैसा कि प्रोटीन्स की स्टडी हुई है उसी प्रकार से भारत में स्कूल गोइंग बच्चों में पानी पीने के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई है, और ये देखा गया है कि हमारे यहाँ बच्चे पानी जितना पीना चाहिए उससे काफ़ी प्रमाण में कम पीते हैं। आपको जानकारी होगी कि हमारा जो शरीर है ये 70% इसमें सिर्फ पानी है। अगर किसी का वज़न 70 किलो है मान लो, तो 49 kg तो उसके शरीर में सिर्फ पानी है, और थोड़ी भी पानी की कमी से हमारा ब्रेन का फंक्शन प्लस हमारी इम्यूनिटी दोनों कम होती है। तो आप ये देखें, बच्चों में एक और विशेषता है पानी के बारे में। बड़ों को थोड़ी भी प्यास लगती है तो बड़े लोग पानी तुरंत पी लेते हैं, मगर बच्चों का जो थर्स्ट सेंटर होता है वो इतना विकसित नहीं होता है। तो बच्चे अगर किसी और काम में हैं, जैसे कुछ खेल रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, तो वो पानी पीने की जो हल्की सी प्यास उनको लगती है उसको ओवरकम कर जाते हैं और उस वक्त पानी नहीं पीते। तो हमको याद दिला दिलाकर बच्चों को पानी पिलाना ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि एक सर्वसाधारण बच्चे ने कितना पानी पीना चाहिए, तो इसका भी एक बहुत सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो फार्मूला 8 साल की उम्र तक अप्लाई होगा। जितने साल का बच्चा है उतने पाव पानी पीना चाहिए। एक पाव माने 250 ml। मान लो 3 साल का बच्चा है तो उसमें 3 पाव पानी पीना चाहिए, यानी 750 ml पानी पीना चाहिए। और ये पानी वो जो दूध, चाय, कॉफ़ी या जूस पिएगा उसके अलावा है, और किसी लिक्विड्स को इसमें नहीं गिनना है। ये मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, पानी इतना पीना चाहिए। आखिरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण खाने के बारे में है और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। अगर आप मुझे पूछेंगे कि जितनी चीज़ें मैंने आपको खाने के बारे में बताई, इसमें से एक ही चीज़ बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है नाश्ता। जो बच्चा नाश्ता मिस करता है उसका स्कूल का परफॉर्मेंस हमेशा नाश्ता डेली करने वाले बच्चे से कम रहेगा। नाश्ता ये बच्चों के जीवन का, एक्चुअली हमारे भी जीवन का, खाने में अगर आप देखोगे तो सर्वश्रेष्ठ जो पार्ट है खाने का वो है नाश्ता। तो ये देखिए कि बच्चा सुबह घाई में होता है, उसकी स्कूल की बस आने वाली है, पेरेंट्स को वहाँ छोड़ना है, तो अक्सर बहुत बच्चा लेट उठता है। तो इन सब कारणों से बहुत सी बार ये देखा गया है कि बच्चा नाश्ता मिस कर जाता है, करना नहीं चाहता बहुत सी बार। तो आप ये देखें कि नाश्ता करना सबसे महत्वपूर्ण है। नाश्ते को आप कभी मिस मत होने दीजिए। नाश्ता क्यों ज़रूरी है और वो कैसे हेल्प करता है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसको हम और किसी समय लेंगे। मगर आज आप इतना जान लें कि बच्चे का नाश्ता आज के बाद आप कभी मिस नहीं करोगे, और नाश्ता भी बहुत अच्छे प्रमाण में करना है। आपने कहावत सुनी होगी कि यू शुड ईट द ब्रेकफास्ट लाइक द किंग। सबसे बड़ा खाना बच्चे का नाश्ता होना चाहिए। तो आज से आप नाश्ता मिस नहीं करोगे। अगली बात जो हमारे इम्यूनिटी और स्कूल परफॉर्मेंस के लिए है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको हमेशा लगता है कि एक्सरसाइज से तो हमारा शरीर ग्रो होगा, मसल्स बनेगी, हमारा हार्ट स्ट्रांग होगा, मगर ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज से ऐसे हार्मोन शरीर में डेवलप होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी और ब्रेन का फंक्शन दोनों भी बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, हमारा हमेशा एक्सरसाइज करने के पीछे का जो होता है कि हमारे शरीर, हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े ये स्ट्रांग हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज के और भी फायदे हैं, और ये दोनों फ़ायदे, इम्यूनिटी और स्कूल परफॉर्मेंस का फ़ायदा, आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज करना है तो एग्जैक्टली क्या करना है। एक तो बच्चे को घर के बाहर खेलने के लिए जाने देना है। आजकल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर मैं एक नॉर्मल समय में आपको बताऊंगा कि बच्चे ने आउटडोर गेम खेलना ही चाहिए, खेलने के लिए जाना चाहिए। भले ही कोई गेम ना खेले, बच्चों के साथ भी कुछ खेल ले घर के बाजू में तो भी चलेगा। दूसरी बात है कि एक्सरसाइज के बारे में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो है एफ, डी और आई। एफ का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी, तो कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हर हफ्ते में कम से कम 6 बार।
अगर 7 बार करता है, 7 दिन करता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मिनिमम से मिनिमम 6 दिन बच्चे ने एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। दूसरा है ड्यूरेशन, कितनी देर करना चाहिए, तो कम से कम 60 मिनट, 1 घंटा बच्चे ने एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और तीसरा है आय यानी इंटेंसिटी, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अगर वो उसको पसीना आता है खेलते समय, एक्सरसाइज करते समय, और उसकी सांस फूल जाती है, तो आप समझिए कि ये इंटेंसिटी एक सही इंटेंसिटी हुई एक्सरसाइज की। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई पेडोमीटर लगाए हाथ पे या कोई मशीन लाए और जिससे हम गिने कि बच्चे की इंटेंसिटी कितनी है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल टर्म्स में जब हमको एक्सरसाइज करते समय पसीना आता है और हमारी सांस फूलती है तो वो सही इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हुई। तो इस प्रकार से हफ्ते में कम से कम 6 दिन, कम से कम रोज़ाना 60 मिनट, और इतनी इंटेंसिटी से कि जिसमें बच्चे को पसीना आए और बच्चे की सांस फूले। तो ये हुआ एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट जो विषय है इम्यूनिटी और स्कूल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, स्टडीज़ में आगे जाने के लिए, वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों का विषय है और जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। तो आप पूछोगे कि मेंटल हेल्थ से इम्यूनिटी कैसे कम होगी। तो आपको बता दूं मैं, बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि अभी फाइनल एग्ज़ाम आ रही है और पेरेंट बच्चे को लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब साल भर तो पढ़ाई किया और देखिए एग्ज़ाम आ गई और ये बीमार पड़ गया। क्यों पड़ता है बच्चा बीमार एग्ज़ाम के टाइम? एग्ज़ाम एक स्ट्रेस का समय है और स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे शरीर में सेक्रेट होता है, वो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत घातक है। तो जब भी हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, ये देखा गया है कि मेंटल हेल्थ ख़राब वाले जो लोग होते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ ऑप्टिमम नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो मेंटल हेल्थ का हमारे इम्यूनिटी के साथ बहुत ही बड़ा संबंध है। ऐसा ही मेंटल हेल्थ का संबंध हमारे ब्रेन के फंक्शन के साथ है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब सवाल ये है कि हम मेंटल हेल्थ सुन तो चुके हैं, इसको समझ गए कि अच्छी रखना है, पर ये मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या? शारीरिक हेल्थ क्या है? ये अगर मैं आपको पूछूं तो आपके लिए इसका सवाल का जवाब देना बहुत आसान होगा। जैसे आप कहेंगे कि बच्चे का वेट अच्छा होना चाहिए, मसल्स अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, उसके बॉडी में लवचिकता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये अगर 4 चीज़ें हैं तो हाँ, उसकी शारीरिक हेल्थ बहुत अच्छी है। मगर इस प्रकार से फिर मेंटल हेल्थ अच्छी है ये कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, मेंटल हेल्थ 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है। वो 3 पिलर क्या है? हमारे इमोशंस यानी भावना, हमारे थॉट्स यानी विचार, और तीसरा है हमारा बिहेवियर यानी कृति। ये जो इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर है, ये 3 पिलर है मेंटल हेल्थ के। अगर हम ये तीनों को समझ जाएंगे, थोड़ा साइंटिफिक है मगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, जिससे अगर एक बार आप ये समझ जाते हैं तो ये न सिर्फ आपके बच्चे के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये जो 3 पिलर्स है, बल्कि आपने कभी सुना भी होगा कि कोई भी काम करो तो तन मन से कम करो, सुना होगा आपने। अब ये तन मन से कैसा करें? काम तो तन से ही कर सकते हैं, मन से काम कैसे होगा? तो इसके पीछे यही है कि जब हम कोई शारीरिक क्रिया भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा मन भी अगर उसमें चीज़ में आ गया तो हमारा काम वो बहुत अच्छे से होता है। कहते हैं ना हम कि पैशन के साथ कोई काम करो तो अच्छा होगा। पैशन तो कभी काम करता नहीं, काम तो हमारे हाथ कर रहे हैं, तो पैशन कहाँ से आया उसमें? या ऐसा कहते हैं मराठी में कि मन रमलं तर मग काम चांगलं होते। तर हे मन रमलं म्हणजे काय? तर इथे आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की इमोशन्स, बिहेवियर आणि थॉट्स, ह्या तिघांचा आपसा काय संबंध आहे? तो ये जो 3 चीज़ें होती है कि हम एक उदाहरण के साथ देखेंगे। तो आप देखिए कि मान लो 2 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों ने 30-30 मिनट एक्सरसाइज की, दोनों का एज सेम है और दोनों ने वही एक्सरसाइज की सेम। तो अब आप क्या कहेंगे कि दोनों को फ़ायदा कितना होना चाहिए? समान फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने कृति तो सेम की। इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर, इस ट्रायंगल में से बिहेवियर यानी कृति दोनों ने सेम की, दोनों ने एक्सरसाइज की, दोनों ने सेम एक्सरसाइज की, समय सेम था, फ्रीक्वेंसी थी, ड्यूरेशन था, इंटेंसिटी सब सेम था, फिर तो फ़ायदा सेम होना चाहिए। नहीं होता है फ़ायदा सेम। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का साइंस आप जानिए। बिहेवियर यानी कृति सेम थी, अब इसके पीछे के थॉट्स देखिए। एक पर्सन ने जब एक्सरसाइज की तो उसके पीछे क्या थॉट था?
उसको घर से भेजा गया, जाओ तुम एक्सरसाइज करो, करना चाहिए एक्सरसाइज। ज़बरदस्ती वो एक्सरसाइज के लिए करने के लिए आया। सुबह उसको उठना पड़ा, उस बात से उसको गुस्सा था, नाराज़गी थी। तो उसके थॉट्स क्या चल रहे थे कि फालतू में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी नींद नहीं हो रही है, मुझे जान पे आ रहा है, ये उसके अंदर थॉट्स आए। दूसरे पर्सन ने क्या किया, नहीं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे मेरा शरीर अच्छा होगा, मेरा मन अच्छा होगा, मैं खुद का और मेरे फैमिली का ज़्यादा ध्यान रख पाऊँगा, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है। ये हुआ थॉट्स, दोनों के थॉट्स अलग अलग थे। अब हम देखेंगे इमोशंस। इसके अंदर क्या था इमोशन, बोरियत थी, गुस्सा था। और इसके अंदर कौन सा इमोशन था, हैप्पीनेस था और आनंद था। तो कृति सेम होने के बाद भी इमोशंस और थॉट्स अलग अलग होने से जिसके थॉट्स और इमोशन उस कृति को मेलजोल खाते हुए थे, अच्छे थे, उसको साइंस ने प्रूव किया है कि उसको 10 टाइम्स ज़्यादा फायदा होता है उसी एक्सरसाइज का। अब आप देखिए कि अगर हम थॉट्स और इमोशन को अच्छा रखें तो उस चीज़ का हमको अगर 10 गुना ज़्यादा फायदा होता है, तो ये तो बहुत ही करने योग्य चीज़ है और इसको हम कर सकते हैं, रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हम इसको ला सकते हैं। इसी तरह आपको उदाहरण दूंगा मैं बच्चों के पढ़ाई का। 2 बच्चों को आप 1-1 घंटा पढ़ाई के लिए बिठा दीजिए। एक अपने मन से पढ़ाई कर रहा है, उस समय उसके थॉट्स है कि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाई करते समय, मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। जो दूसरा ज़बरदस्ती से बिठाया गया है। दूसरे की भावना गुस्से की है, इसके भावना आनंद की है कि मुझे आज ये नई चीज़ पता चली, मैं परीक्षा में अगर ये आता है तो मैं लिखूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जीवन में भी मुझे इस नॉलेज का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो थॉट्स और इमोशन अगर बच्चा अच्छा रखता है, खुद से पढ़ाई में बैठता है, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और वो स्कूल के परफॉर्मेंस में कभी भी अव्वल आएगा, जो ज़बरदस्ती से बिठाया गया बच्चा है पढ़ाई के लिए। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे की आज चीज़ आप समझ गए कि थॉट्स और इमोशंस हमारे कृति में अगर सही तरीके से आते हैं तो उसका फ़ायदा हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसी क्या चीज़ें घर में कर सकते हैं जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ, जिससे मानसिक स्वास्थ्य हम अच्छा रख सकें। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको करनी है, जैसे कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन माने बच्चों से बातचीत। आपने सुना है क्वालिटी टाइम, ये शब्द तो आज सभी ने सुना है। तो हम पूछते हैं पेरेंट्स को कि क्या आप बच्चों को साथ समय बिताते हो, क्वालिटी टाइम देते हो? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, रोज़ हम आधा घंटा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। क्या करते हैं आप उस समय में? तो वो कहते हैं हम बच्चे के साथ बैठते हैं, उसको सिखाते हैं कि बेटा कैसे जीना है, पढ़ाई कैसे करना है, दोस्त कैसे चुनना है, कोई हमारे घर पे कोई गेस्ट आए तो कैसे रहे। यानी क्या किया उन्होंने, पेरेंट्स ने उनको सीख दी, भाषण दिया। ये क्वालिटी टाइम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्वालिटी टाइम का मतलब आप पहले समझ लीजिए, तो आप क्वालिटी टाइम दे पाओगे। क्वालिटी टाइम वो है जिस समय बच्चे और पेरेंट साथ में बैठे हैं, मगर बोल कौन रहा है, बच्चा बोल रहा है और पेरेंट सुन रहा है। बच्चे के पास आपसे बातें करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, मगर वो कभी हमको उस स्टेट में पाता ही नहीं, उस अवस्था में पाता ही नहीं कि जहाँ वो अपनी खुलकर बातें कर सके। हमेशा हम ही बोलना चाहते हैं। हम अगर हमारा मोबाइल बंद करके बच्चे के साथ आधा घंटा बैठे और बच्चा बोलता रहे और हम उसको अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हुआ सही मायने में क्वालिटी टाइम। और आप एक बार इसको करोगे, जरूरी नहीं कि आपको आधा घंटा करना है, आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, मगर ये रोज़ एक दिन आड़, हफ्ते में 3 बार 4 बार करिए। कोशिश करिए, इतना समय हम सबके पास होता है। सिर्फ ये मानसिक अवस्था हमको डेवलप करनी है कि इतना समय मुझे बच्चे को क्वालिटी टाइम, जैसा मैंने बताया उस प्रकार से देना है। अगर ये आप देखोगे तो कुछ समय में आपको लगेगा कि बच्चा खुलकर आपसे बातें करने लगा है। उसका दोस्तों में क्या प्रॉब्लम हुआ था, किस चीज़ का उसको स्ट्रेस आया था, टीचर ने क्या बताया था, कहाँ क्या हुआ था, ये सब बातें वो आपसे बताएगा। और जब वो अपने मन की बातें आपके सामने रखेगा तो उसके अंदर का स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये क्वालिटी टाइम आपको देना है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन। दूसरा हुआ प्यार, बच्चे से प्यार करना है। अब आप ये कहोगे कि ये क्या बताने की चीज़ है, हर आदमी अपने बच्चे से प्यार करता है, मगर मैं अलग टाइप की चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्या है, हमारा प्यार बहुत सी बार ये देखा गया है कि बच्चे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। मैं कह रहा हूँ आपको अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं,
कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, कोई ट्रॉफी लेके आया या अच्छे मार्क्स मिला लिया या अव्वल नंबर उसका क्लास में आ गया, तो हम उसको बहुत प्यार करेंगे, उसको हक करेंगे, पास में लेंगे, उसको चूमेंगे, उसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। मगर मान लो बच्चा फेल हो गया, बच्चा गेम्स में हार गया, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पहले 2-3 नंबर में वो नहीं मिला पाया, पीछे आ गया, तो क्या होता है उस समय? क्या देखता है बच्चा हमसे? बच्चा ये देखता है कि इस समय मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं कर रहे, उतने अच्छे से, उतने सपोर्टिव, इतने इनकरेजमेंट से मुझसे बात भी नहीं कर रहे। ये बच्चा सेंस कर लेता है। ये जब वो सेंस करता है तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रमाण में शटर हो जाती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चे को और उसके बिहेवियर को आप सेपरेट करना सीख लीजिए। हम कभी इस विषय पे बात करेंगे, पेरेंटिंग और डिसिप्लिन, उस समय ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मगर आज मैं आपको बता दूं कि बच्चा और बच्चे का बिहेवियर, इन दोनों को आप एकदम अलग अलग कर लीजिए। बच्चा हमेशा ही प्यारा है, बच्चे से आपको हमेशा ही प्यार करना है। उसका जो बिहेवियर है वो गलत हो सकता है, उसको आप बुरा कह सकते हो, बिहेवियर की आप निंदा कर सकते हो, बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बच्चे को कभी नहीं करना है। बच्चे से हमेशा ही प्यार करना है। बच्चे के हाथ से कोई गलती हो गई तो तू ऐसा है, तू खराब है, तू लेजी है, तू बुरा है, ये कभी नहीं बोलना है। तूने जो काम किया वो गलत है, वो लेजीनेस था, ये तेरे हाथ से गलती हो गई, ये बताना है। तो बिहेवियर और बच्चा, इसको आप अलग करिए। बिहेवियर को भले ही आप क्रिटिसाइज करिए, बच्चे को हमेशा प्यार करिए। तीसरा है कि हम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, आजकल ये शब्द बहुत हम सुन रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये शब्द तो बड़ों के लिए ही है कि बड़े ही मेडिटेशन करेंगे, बच्चा क्या मेडिटेशन करेगा, या माइंडफुलनेस तो बड़ों के लिए है, बच्चों को क्या करेंगे माइंडफुल। तो आपको बता दूं कि ये माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अर्थ ही हम लोग गलत समझ रहे हैं। क्या आता है आपके सामने जब माइंडफुलनेस या मेडिटेशन का शब्द मैं रखता हूँ? तो कोई ऐसी मुद्रा में बैठा है, एक रूम साइलेंट है, सामने एक कुछ मोमबत्ती जली हुई है और वो ओम का उच्चारण कर रहा है, ये सब मेडिटेशन है? ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन ये भी हो सकता है कि आप झाड़ों को पानी डाल रहे हो, आप कोई गाना गुनगुना रहे हो, आप भजन कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, ये सभी मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन का मतलब हमको समझ जाए तो ज़रूरी नहीं कि उस प्रकार के वातावरण में हम मेडिटेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, ना आप पास्ट की चिंता कर रहे हो, ना आप फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में सोच रहे हो, बस अभी हो, इस समय में हो और इस समय को, इस मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, ये है मेडिटेशन। तो जो कल्पना हमारे मन में हमने मेडिटेशन की बना के रखी है वो सही नहीं है। तो अगर मान लो बच्चा कोई प्रेयर बोल रहा है या कोई गाना गा रहा है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जिसको उसको बहुत आनंद आता है, तो वो भी एक प्रकार से मेडिटेशन है। तो इसलिए आप बच्चे के साथ या बच्चा अकेला भी कोई ऐसी एक्टिविटी करे जो उसको बहुत पसंद हो और उसमें वो पूरी तरह से खो जाता है, तो इसी खोने को कहते हैं मेडिटेशन। ना उस समय वो पास्ट की चिंता कर रहा है, ना आने वाले परीक्षा की चिंता कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस उस एक्टिविटी में पूरी तरह से खो चुका है, इसको मेडिटेशन कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई कि जिससे हम बच्चों की मानसिक हेल्थ को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं, हर कोई ये कर सकता है, सिर्फ इसकी जानकारी हमको हो जाए तो हम ये करेंगे। कुछ प्रमाण में आप शुरू करिए, ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही आपको इसमें बहुत सक्सेस मिलेगा, मगर जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते जाएंगे आपको धीरे धीरे लगेगा कि आप इसमें बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर चुके हो। उसके बाद बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है, वो है इम्यूनाइजेशन, जिसे हम लसीकरण या टीकाकरण कहते हैं। जैसे कि सब टीके बच्चों के हमने दिलवाने चाहिए। जैसे फ्लू का टीका है जो हर साल दिलाना चाहिए, अभी फ्लू का सीज़न चल रहा है, तो ये टीके भी हमने पूरी तरह से दिलाना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हुई कि जो हमारे इम्यूनिटी को और स्कूल परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आखिरी विषय जिसको मैं एक टच करना चाहूँगा, जो सिर्फ स्कूल के परफॉर्मेंस के बारे में है, कि कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन आपने कहीं सुना होगा, या असाधारण बच्चे इनको कहती है, हमारी भाषा में इसको NDD कहते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये बच्चे को पहले डिसेबिलिटी कहते थे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो आजकल ये शब्द बिल्कुल
आउटडेटेड हो गया है, ये शब्द हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी नॉर्मल बच्चों जैसे हैं, मगर इनमें एक कोई चीज़ है जो असाधारण है, जो अलग है बाकी बच्चों से। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जैसे हम कहते हैं अति चंचलता, एक जगह बैठते ही नहीं, उनका ध्यान कंसंट्रेशन स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है, किसी एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इधर पढ़ाई का किताब खोला, उधर थोड़ी सी भी बेल बजी या मोबाइल की रिंग बजी तो तुरंत उनका ध्यान पढ़ाई से हट के उधर चला जाएगा। तो क्या हुआ कि उनका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन कम है। एक जगह बैठे रहेंगे तो टेबल को बजाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, चम्मच का आवाज़ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ये हुए एक अति चंचलता। दूसरे कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही शाय होते हैं, दूसरों से बात करने में शर्माते हैं या बात करना अवॉइड कर देते हैं, किसी तरह से उस सिचुएशन को अवॉइड कर जाते हैं जहाँ बात करना होता है। कुछ बच्चों को डिसलेक्सिया होता है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, आपने देखा होगा जैसे तारे ज़मीन पर जो बच्चा था कि वो पढ़ाई में पीछे पड़ता गया क्योंकि उसको वो एक चीज़ थी जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आपने अनेक बार देखा होगा कि बच्चे, आपका एक्सप्रेशन ये रहा भी होगा कि मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत है मगर मार्क्स नहीं मिलते। तो ऐसे कुछ अलग टाइप के बच्चे होते हैं, इनको हम लोग इवेलुएट करते हैं, इनका हम डायग्नोसिस करते हैं, कंप्यूटराइज टेस्ट इसकी होती है और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा किसी कारण से अच्छी पढ़ाई कर कर भी मार्क्स नहीं मिला पा रहा है, या जैसे मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए इसमें से कुछ है, तो कृपया करके उसको पनिशमेंट मत करिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि ये सब वो जानबूझ से कर रहा है, ये वो जानबूझ से नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का ये लक्षण है, तो उसको पनिशमेंट दे करके हम उसका और ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। बल्कि ऐसे बच्चों को आपके सपोर्ट और आपके लव की ज़रूरत है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको डायग्नोसिस की ज़रूरत है। तो उसके साथ कृपया पनिशमेंट मत करिए, उसको डांटे भी नहीं। पनिशमेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको मारिए मत, उसको डांटिए मत, उससे चिल्ला के बात मत कीजिए और उसको तू पढ़ता ही नहीं, तेरे में तो ये कैपेसिटी नहीं, इस प्रकार की हीनतापूर्ण चीज़ें मत कहिए। इससे बच्चे का जो मॉरल है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत डाउन होता है। और इन बच्चों को जब आपको कुछ समय बाद, कुछ बड़ा होने के बाद पता चलेगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो आप भी बहुत पश्चाताप करेंगे। तो ऐसे बच्चों को आपको अलग तरीके से डील करना होता है। All things come to an end, and so is this webinar. But before that, I would propose a vote of thanks to our guest of honor, Dr. Narendra Rathi. Thank you, sir, for addressing us. We are really privileged and blessed with your interesting and thought-provoking seminar. I am sure that all the viewers have taken a note of your valuable suggestion. Thank you once again, sir, for addressing us. I would also take an opportunity to thank our director, Dr. Gajanan Nare sir and Vandana Nare ma'am for their guidance and contribution. I would also take an opportunity to thank all the parents who have taken out time and have been with us in this webinar. With these kind words and warm wishes, I would like to end this webinar. Thank you.